کہا تھا آج بھی کمیونٹی پیج میں کہا تھا گرفتاری نہیں ہوگی، اور میری اگر کچھ ویڈیو کو سمجھنا ہے جو میں آگے کی باتیں کر چکا ہوں تو آپ کو پچھلے 2-3 مہینے کی ویڈیو جا کے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آگے کیا ہونے تو میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں، اور ایک سیریل شروع کرنے لگا ہوں جوپیٹر کے اوپر، کیونکہ جوپیٹر جو بہت بڑا پلینٹ ہے، نفس ہے، آگے کیا ہوگا، کیونکہ ایک رجیم چینج، وہ رجیم چینج ہم کہتے ہیں کہ ہوا، لیکن وہ رجیم چینج تو اب ہونا ہے، بہت برا ہونا ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میں تو اپنا نالج شیئر کرتا ہوں، تو نالج کو پھر آگے ضرور بڑھانا چاہیے، اسے شیئر بھی کیا کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی، خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ ہائے، تاریخ بھائی صاحب کی تھی، مشکل ہمیں پڑی ہوئی تھی۔ 9 بجے سے جو فون کھڑکنا شروع ہوئے ہیں اور جو واٹس ایپ میسنجر کے اوپر، آخر تنگ آ کر مجھے اپنے یوٹیوب چینل کمیونٹی پیج کے اوپر لگانا پڑا کہ علم کی روشنی میں، اسٹرالوجی کی روشنی میں مجھے آج بھی گرفتاری نظر نہیں آتی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں گرفتاری نظر نہیں آتی، لیکن مجھے پھر بتانا پڑا تاریخ بھائی صاحب کی تھی ہمارے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ انوکھا لاڈلا چاند مانگے، ایک عوام کا لاڈلا، عوام اس کے ساتھ، ایک سسٹم کا لاڈلا، سسٹم اس کے ساتھ۔ اگلے مہینے پورے سال ہو جائیں گے اس رجیم چینج کو، اور میں نے اسی وقت سے کہنا شروع کیا تھا کہ رجیم چینج تو اصل ہونا ہے، اور وہ بھی اپریل میں ہونا ہے، کیونکہ جوپیٹر برج حمل میں آ رہا ہے اور راہو کے ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے علاوہ صرف کرونا قدرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلم بڑھے گی اور کافی حد تک زیادہ بڑھے گی، اور اکتوبر تک تو بہت زیادہ ہے۔ اب عمران خان کے پیچھے گھر پہ حملہ ہو گیا، اب اس کے گھر میں سے کیا نکلا، گھسپیٹیے نکلے، سوتروں کے انصار گھسپیٹیے نکلے، پرامو بم نکلے وہاں سے، پرامو بم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکلا وہاں سے، سب کچھ نکل گیا۔ نہیں نکلا تو جو ان کی مقصد کی چیز تھی وہ نہیں نکلی۔ کہتے ہیں نا کہ وقت برا جب کسی کا ہوتا ہے نا، تو وقت برے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے عقل کے اوپر پردے پڑ جانا۔ جیسے میں نے کہا، مارس جمنائی میں بیٹھا ہوا ہے دشمن کے گھر میں، اور اگلا گھر اس کا نیچ کا گھر ہے، بہت برا، بہت بڑی پرابلم آنے والی ہے۔ آگے چیزیں جس طرف جانے والی ہیں نا، کیونکہ جوپیٹر پہ ویڈیو میں نے پورا منڈین اسٹرالوجی کے اوپر بھی انشاءاللہ سے بنائیں گے، کیا سینیریو اس کی صورتحال ہے، اور ہم ہماری زندگی میں جو 22 کروڑ ہمارے ہیں، باقی دنیا میں جو ہیں سارے، کیا اس کا اثر پڑے گا، اس پہ ایک الگ بنے، اسی پہ میں کام کر رہا ہوں کافی دنوں سے، اسی پہ لگا ہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے تھرل ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، روز تھرل۔ اور آج حکومت نے کیا غلطی کی؟ میں نے کہا تھا حکومت کے لیے مشکل ٹائم، سن واٹر ایلیمنٹ جوپیٹر کے ساتھ۔ اب سن کو سول کہا جاتا ہے، یعنی آتما اور روح کا ملاپ، آتما اور جسم کا ملاپ، نفس، جسم تو مارس کو کہا جاتا ہے، نفس کا اور جسم کا، پھر بار پر غلطی ہو رہی ہے، نفس اور آتما کا ملاپ۔ شمس کو آتما کہا جاتا ہے اور جوپیٹر کو نفس کہا جاتا ہے۔ مارس جو شریر ہے، باڈی، وہ دشمن کے گھر میں ڈیول زوڈک سائن میں ہے۔ اس ٹائم میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو ڈیول زوڈک سائن ہے، ورگو کا لگن ہے، لگن کا مالک جو ہے وہ بھی 7ویں گھر میں، نیچ کا گھر کہلاتا ہے، لیکن جوپیٹر بیٹھا نیچ بھنگ راج یوگ بن رہا ہے۔ 12ویں کا مالک بھی 7ویں گھر میں، 7واں گھر پارٹنرشپ کا گھر ہوتا ہے، میرج پارٹنر کا ہوتا ہے، بزنس پارٹنر کا ہوتا ہے، اور ہماری پی ڈی ایم بھی پارٹنرشپ بھی چل رہی ہے، تو 12ویں گھر کا مالک طلاق کا کارک بھی مانا جاتا ہے۔ تو پی ڈی ایم میں جو چارٹ جو اس وقت بنا ہوا ہے، تو پی ڈی ایم میں آگے والی حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے، اس میں
काफ़ी मुश्किलात बढ़ती हुई आज जो वाक़यात हुए हैं पिछले चंद दिनों में हुए हैं, वो बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है। मैंने आपको कहा था कि मीडिया का बहुत बुरा टाइम आ रहा है, मीडिया के अलावा और बहुत से पर्सन्स का बुरा टाइम आ रहा है। अब जेन्युइन रजीम चेंज का वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में आ चुका है और ऊपर से फिर राहु के नक्षत्र पे आ चुका है, सप्तविषा नक्षत्र, जिसके बारे में मैं डिटेल के साथ आपको वीडियो बता चुका हूँ। जो आज हुआ है इसमें कोई शक नहीं, इखलाकियात के तौर पर बहुत बुरा हुआ। घुसपैठिए घुस गए, घुसपैठिए निकले, प्रोमो बम निकले, वहां से बड़ा कुछ निकला वहां पे। अब क्योंकि अदलिया का, जिस तरह मैंने कहा था कि अदलिया का कंफर्ट तबाह होने जा रहा है, अब अदलिया पर बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अदलिया थोड़ी एग्रेशन में आती हुई नजर, क्योंकि सन का ताल्लुक एग्रेशन से है। और आज जो कोर्ट में हुआ, और जैसा सबने भी कहा कि जो कुछ हो रहा सही नहीं हो रहा, यानी आपका हर एक्शन वो आपके रिएक्शन में तब्दील हो रहा है, उसको उनको फायदा हो रहा है। तो क्या बड़ी है, आने वाले वक्त बड़ा ही जालिम। और आज मून जो है अभी तक कैप्रिकॉर्न नहीं है, निकलने वाला है, थोड़ा सब्र कर लेते थे, नहीं हुआ ना, मुश्किल होगी चीजें आपके लिए। मैंने बताया था कि एक हुकूमत की रिट होती है, वो अगर होती तो शायद कुछ कामयाब भी हो जाती, लेकिन ये तो सारा खेल ख्वाहिशात के ऊपर चल रहा है। अब ख्वाहिशात तो घर 11वां फलक का, तो ख्वाहिशात जो है वो तो पूरी नहीं होने लगी, नहीं हो रही, पैनिक हो रहा है, हुकूमत पैनिक कर रही है। और यहाँ इमरान को जितनी और पीटीआई को जितनी भी दुआएं देनी चाहिए, जितनी भी दुआएं देनी चाहिए, वो मरीम नवाज को दे। उनका हर स्टेप पीटीआई के लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा। और ये दुआएं दें कि मरीम नवाज उनको जिंदा, बल्कि उनको कायम रखा हुआ है, जरूरत नहीं नून लीग को खत्म करने की, क्योंकि मरीम नवाज है वो खुद ही होते। जो प्लानिटिक कंडीशन और जो मौजूदा सूरत हाल उसको देख के कह रहा हूँ, और जो चार्ट है वो, क्योंकि 12वां घर शम्स का है, विर्गो लगन है, 7वें का मालिक भी 7वें में है, लेकिन इसी अगले महीने में 7वें का मालिक राहु के साथ जाके मिलेगा, शम्स भी 8वें घर में आ जाएगा, और जो है मरकरी ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। और तो यहाँ पर पीडीएम के लिए आगे बहुत मुश्किल टाइम, और अदलिया की तरफ से हुकूमत को कुछ मुश्किलात खड़ी होती हुई बड़े लेवल पर वो दिखना शुरू हो रही है। और ये बड़े क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, मार्च का ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों से भी होता है, दोनों मुश्किल में आ रहे हैं, क्योंकि सन को अगले महीने ग्रेन लगने जा रहा है। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल और काफ़ी मुश्किल टाइम है, क्योंकि वक्त इस वक्त टोटल इस वक्त हुकूमत के फेवर में नहीं, और आवाम पर जो बिजली का क्राइसिस और वीनस और बर्डा है वो तो आपको नज़र आएगा, बड़े लेवल के ऊपर नज़र आएगा, क्योंकि वीनस और राहु का कंजक्शन भी है, और वहाँ बहुत कुछ आपको उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगा। और क्राइसिस मनी हमारे यहाँ तो वो बरकतों का महीना भी शुरू होने वाला है, हाजी साहब की दिहाड़ियाँ लगने शुरू का टाइम हो गया है, यहाँ हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। और फूड क्राइसिस में सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। पाकिस्तान हम थे तो नहीं गरीब, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें गरीब भी बना दिया और भिखारी भी बना दिया, और सर्टिफाइड भिखारी बना दिया हमें, क्योंकि वज़ीर आज़म हमारे यही कहते हैं। मुश्किल टाइम आ रहा है, आगे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, पैनिक होने वाला है, क्योंकि आवाम के अंदर रिएक्शन, क्योंकि जुपिटर जिसका ताल्लुक नफ्स से होता है, इंसान से होता है, यानी मैं हूँ आप है, वो जब राहु के साथ आएगा और बुर्ज हमल में आएगा तो बड़ा पैनिक फैलेगा। तो यहाँ सैटर्न की पूरी नज़र है वीनस के ऊपर और राहु के ऊपर, और यही शम्स रहेगा, यानी गवर्नमेंट के लिए आने वाला वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन साबित होने वाला है। जो स्कॉर्पियो लगन था, याद अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये
स्तर लगन यानी कि फिक्स लगन है जो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। ड्यूअल ज़ोडिक साइन का मतलब तो आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं। तो चीज़ें जो हैं अगर आपने अभी भी दूरअंदेशी से काम नहीं लिया हम लोगों ने, तो ऐसा वक्त आने वाला है, अगर हमने चाहे हमारी वो सियासी जमातें हैं चाहे इदारे हैं, वक्त जब हाथ से निकल जाता है और वक्त एक चीज़ होती है, वक्त आपको टाइम देता है कि अब वक्त पे चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, अब हमें उस तरफ आना पड़ेगा। नहीं तो वक्त फिर जब ठीक करता है तो वक्त बड़ा ही ज़ालिम है और मुझे लगता है कि अब वक्त ही की जो है अब धार हम पर चलना शुरू होगी और जब वक्त बदलता है, वक्त चीज़ों को बदलता है तो बड़ी तकलीफ़देह होती हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है। थोड़ा-सा आप भी सब्र करके रखा करें। वीडियो हमेशा हम शाम को बनाते हैं क्योंकि इसके अलावा भी और हमारे काम है, क्लाइंट्स को मिलना है और दूसरी चीज़ें हैं और जिस तरह का प्रेशर आप डाल देते हैं, कल भी बताया, आज भी आपको बताया कि बेल हो जाएगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। आज जो हंगामा हुआ ये भी फेवर में चला गया। थोड़ा सा हौसला रखा करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करें, क्योंकि बनाते हैं आपके लिए। अगर आप शेयर करेंगे तो थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम फिर ज़्यादा शौक से वीडियो को जो है आपके लिए और करेंगे, क्योंकि बना तो रहे हैं, क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बड़ा शौक है 2-3 चीज़ों का, उसके ऊपर बड़े टॉपिक हैं। जैसे मैंने कहा था, मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ उसके लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं, काफ़ी तकलीफ़देह है, पर वो सच है। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।